Okay, Assalamu alaikum. So today's clinical presentation is about the instruments. So for today's presentation, our main focus would be on the instruments which we commonly use in restorative dentistry. And after that, I'll discuss about the instruments which we use in the placement of rubber dam. Uh, for the last time, can you hear me, guys? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. Okay. So before proceeding with the presentation, I would like to ask a question. As you can see, there's an instrument which is being shown on the slide, and there are three parts: number one, number two, and number three. So, can you tell me कि one, two, three क्या denote करता है? What is one, what is two, and what is three? Keeping in mind the parts of the instrument. So, G. so working end, one is working end. Very nice. One is working at two. Two is shank. Two is shank, and number three is Holder. Handle. hand. Handle. Very nice. So the presentation would be like that. I would show you the picture and then I'll ask the question. So please be attentive, and I am recording this lecture and I'll share the link as well. Now, in order to understand the instrument, as I have already shown you the picture, it has three parts: the working end, handle, and the shank. Now, the handle and the working end are connected by this. This is known as the shank. Whenever you will visit the operative clinic and whenever you hold a certain instrument, you would find some numbering in that instrument. It can be either three numbers or four numbers. Okay? And we call those numbers as the 3-unit formula or the 4-unit formula. Now let's suppose there's an instrument in which three numbers are being written: number 10, number 7, and number 14. So the first digit, number 10, it denotes the width of the blade or the working end. ये जो हमारा वर्किंग एंड है, ये जिसको ब्लेड भी कह सकते हैं हम, इसकी विड्थ जो है ना, वो डिनोट कर रहा है 10. ठीक है, यानी 10 mm तक इसकी विड्थ होगी. सेकेंड यूनिट डिनोट्स द लेंथ ऑफ द ब्लेड. अब इसी ब्लेड की जो लेंथ है वो डिनोट कर रहा है सेकंड नंबर. लेंथ ऑफ द ब्लेड इज डिनोटेड बाय द सेकंड नंबर. एंड द थर्ड यूनिट, द एंगल द ब्लेड फॉर्म्स विद द एक्सिस ऑफ द हैंडल. हैंडल के साथ जो एंगल बन रहा है ब्लेड का, दिस इज द हैंडल, दिस इज द ब्लेड. इस दोनों के दरमियान जो एक्सिस बन रहा है, यानी हैंडल, ये हैंडल का एक्सिस आ रहा है और ये आ रहा है हमारा ब्लेड का. ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है ना, इट इज डिनोटेड बाय the third unit. This is the 3-unit formula. Now coming to the 4-unit formula. The 4-unit formula is actually the modification of the 3-unit formula. Okay. The first unit is same, width of the blade. The difference arises in the fourth unit. Sometimes the working end जो होता है ना, working end का भी कोई एक ऐसा पार्ट होता है जो कि कर्व्ड होता है. इसमें तो हमने लेट सपोज कि अगर आप कोई कार्वर यूज कर रहे हैं, ठीक है, आई विल शो यू द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट कार्वर्स. अब कार्वर जो होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होते, उनका उनका एक एंगल बना हुआ होता है. उस एंगल को भी डिनोट करने के लिए हम फोर्थ यूनिट यूज कर रहे हैं. ठीक है, वैसे तो हम लोग यूज कर रहे हैं कि जो हमारा हैंडल के साथ एंगल बन रहा है वर्किंग एंड का, इट इज डिनोटेड बाय थर्ड यूनिट. लेकिन समटाइम्स जो हमारा वर्किंग एंड का ब्लेड होता है, जो एंड वाला एरिया होता है, इट इज कर्व्ड. वो क्या एंगल बना रहा है हैंडल के साथ, उसको हम फोर्थ यूनिट से डिनोट करते हैं. एनी क्वेश्चन? ये समझ आ गया आप लोगों को या मैं आगे चलूं? जी जी मैं रोज, कोई क्वेश्चन है आपका? सर ये जो सेकंड यूनिट है 4 यूनिट इंस्ट्रूमेंट के अंदर,
सर ये जो उन्होंने एंगल प्राइमरी कटिंग एज एंगल उसके अंदर सर डायग्राम के अंदर उन्होंने कुछ और सा बनाया हुआ है सर, ये समझ नहीं आ मैं रहा। आपको बताता हूँ। देखें, ये वर्किंग एंड है, ठीक है, ये वर्किंग एंड है और इसकी जो एज है ना वो कटिंग एज है, ठीक है। वर्किंग एंड की जो जिससे हम काम कर रहे हैं, मतलब जिससे हम कट कर रहे हैं कोई भी चीज़, इट कैन बी अ कार्वर, इट कैन बी अ फर्निचर, कुछ भी हो सकता है वो। जो हमारा वर्किंग एंड की जो एज है ना उसको कटिंग एज कहते हैं। समटाइम्स व्हाट हैपन्स, जो कटिंग एज होता है ना, इट इज़ नॉट स्ट्रेट लाइक द वर्किंग एंड, इट इज़ मेकिंग एन एंगल, मतलब उसका एक एंगल होता है। मैं आपको आगे इंस्ट्रूमेंट्स में बताता हूँ उसको, आई शो यू द पिक्चर्स। तो उस एंगल को डिनोट करने के लिए हमने ये वैल्यू यूज़ की है, ठीक है, क्योंकि कटिंग एज जो होती है वो हमारी हमेशा स्ट्रेट नहीं होती, कटिंग एज का भी एक एंगल बन रहा होता है। लाइक यू हैव सीन इन जो कार्वर्स होते हैं, जो कार्वर की जो कटिंग एजेस होती हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती इन लाइन विद द कटिंग एज, उसकी कटिंग एज का भी एक एंगल बन रहा होता है। तो उस एंगल को हमने डिनोट करने के लिए फोर्थ यूनिट फार्मूला यूज किया। नाउ कमिंग टू द ठीक हो गया। डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट, अब आप लोग मुझे बताएं डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या आते हैं चीज़ें, जो बेसिक एग्जामिनेशन किट की। सर मिरर होगा, माउथ माउथ मिरर मिरर, ट्विज़र, एंड एक्सप्लोरर, ठीक है, एक्सप्लोरर, प्रोब, कैरियो प्रोब। ठीक है। और बेसिक जब आपसे पूछें डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट में तो आपने ये चीज़ें बतानी है, ठीक है। नाउ इंडिविजुअली अब हम आ जाते हैं। ये डायग्राम में क्या शो किया है हमने, माउथ मिरर माउथ मिरर, इसका क्या फंक्शन है? सर विजन के लिए, इनडायरेक्ट विजन के लिए, इनडायरेक्ट विजन के लिए और रिट्रैक्शन के लिए ठीक है, रिट्रैक्शन के लिए। और अच्छा एक, इल्यूमिनेशन। ठीक है, और इल्यूमिनेशन, वेरी नाइस, ठीक है। तो ये आप लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए जो मैं आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट्स बताता जाऊँगा। व्हाट इज दिस? सर एक्सप्लोरर, ठीक है, इसका क्या फंक्शन है? सर केरीज को एक्सप्लोर करते हैं इससे। ठीक हो, विद टेक्टाइल सेंसेशन, ठीक है। हमने जब एग्जामिन करना है टूथ सर्फेसिस को, तो केरीज के लिए या इवन हम कैलकुलस को भी एग्जामिन कर सकते हैं सर विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लोरर, तो फिर हम यस सर। एक्सप्लोरर यूज करते हैं। बट बेयर इन माइंड दैट एक्सप्लोरर, अब कहा यह जाता है कि द एंड ऑफ द एक्सप्लोरर शुड नॉट बी प्रेस्ड हार्ड ऑन द टूथ सर्फेस, क्योंकि उससे क्रैक्स आ सकते हैं, माइक्रो क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं, जिसकी वजह से केरीज की प्रोग्रेशन हो सकती है। व्हाट इज दिस? Okay, if you say tweezer, please mention the full name. It is known as polished tweezers भी कहते हैं इन्हें। अगर आप polished tweezers नहीं use कर रहे word, then use the word cotton pliers, ठीक है। What is the function of this instrument? कॉटन वगैरह प्लेस करने के लिए। ठीक है, अच्छा, it also comes in two types. इसमें अगर आप देखें तो इसमें ना एक लॉक लगा हुआ है, मतलब when we close it, it remains closed, ठीक है, मतलब हम उसको लॉक करके रख सकते हैं। और ये है विदाउट लॉक, ठीक है। To place and remove small objects from the oral cavity, cotton pellets भी हो सकते हैं, रूट कनाल इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं, वेजेस भी हो सकते हैं। अच्छा, ये क्या है? What is the name of this instrument? सर पेरियो प्रोब। ठीक है, पेरियो प्रोब। कौन सा वाला पेरियो प्रोब है? CPITN। WHO वाला। एक मिनट, CPITN किसने कहा है? मैंने सर उसमें 3 मार्किंग नहीं होती। ये CPITN जिसने भी कहा है, आपको थोड़ी सी मैं चीज़ बता दूं, हमेशा स्टूडेंट्स कंफ्यूज इसी चीज़ में करते हैं। जो CPITN प्रोब होता है, इट हैज़ अ बॉल एंड, ठीक है, इसमें इट इज़ फ्लैट। सो द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज, अब आप लोग इसको प्लीज याद कर लें, मिशिगन्स प्रोब। मिशिगन इज अ स्टेट इन अमेरिका। मिशिगन्स प्रोब विद विलियम्स मार्किंग, ठीक है। विलियम्स मार्किंग, यस, मिशिगन्स प्रोब विद विलियम्स मार्किंग। नाउ इट हैज द मार्किंग्स आर नोन एज विलियम्स मार्किंग, ठीक है। अब मार्किंग इसकी कहाँ कहाँ होती है? 1 mm पे होती है, 2 mm पे होती है, 3 mm पे होती है, फिर 4 पे नहीं होती, 5 पे 5, होती है, फिर 6 पे नहीं होती, 7, 8, 9, ठीक है, इस तरह 10। मार्किंग होती है। द CPITN प्रोब उसका बॉल एंड होता है, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जो आप लोगों ने याद रखना। हाँ, फंक्शन क्या है इसका?
वो अगली वाली स्लाइड पे लिखा हुआ है। आप लोगों की स्लाइड भी चेंज हुई थी, मैंने तो कैरियर कैसे डॉट की? पॉकेट वगैरह की डेप्थ अच्छा ठीक हो गया। पॉकेट डेप्थ हम देख सकते हैं, कैविटी की डेप्थ भी देख सकते हैं। ओके, व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट? क्या है? सक्शन ट्यूब। अच्छा, Suction tip. यू यूज द वर्ड सक्शन ट्यूब, ठीक है, बट द प्रॉपर वर्ड इज ओरल इवैक्यूएशन टिप, ठीक है, oral evacuator tip. Tip. The purpose of giving this presentation is to provide the proper names for each instrument, ठीक है. Sometimes when an examiner asks the question, he expects the names which are given in the book instead ये जो हमने अपनी short forms बनाई, ठीक है. Suction tip, okay, it's all right, you can use that name, but oral evacuator tip is a better word, ठीक है. And you all know it is being fixed to the suction tube or the compressor, and it is used to maintain a dry field, ठीक है. अच्छा, ये इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? एलिस सिरिंज लोकल एनेस्थेटिक सिरिंज, वेरी नाइस. अच्छा, इसके भी ना पार्ट्स होते हैं. दिस इज द थंब रिंग, यहाँ पे हमारा थंब आता है. दिस एरिया व्हिच इंगेजेस द कार्ट्रिज, उसको प्लंजर भी प्लंजर भी कह सकते हैं, ठीक है प्लंजर भी यस जी, ठीक है. दिस एरिया इज द बैरल और ये पिस्टन होता है, ठीक है. लोकल एनेस्थीसिया, सिंस दिस नेम इज गिवन इन द बुक, दैट्स व्हाई आई हैव मेंशनड इट, ठीक है. तो आप लोग ये चीज़ भी ध्यान में रखें कि whenever someone asks a question, you first give this name, and if he expects another name, then use that name. अच्छा, ये मुझे बताते जाएं, इसे क्या कहते हैं? ये तीनों चीज़ें क्या हैं? पहले इसको बताएं, इसमें क्या है? सर ये ऑफ नीडल है ये तो ठीक है, ये क्या है? What is this? Okay, so रियल कार्ट्रिज this is local anesthetic cartridge, and please keep in mind that whenever in an exam you are going to give an local anesthetic, हमेशा आप लोगों ने एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करनी है, बिकॉज व्हेन आई वाज गिविंग माय फाइनल प्रॉफ, द एग्जामिनर आस्क्ड the expiry date of that local anesthetic cartridge, and I was unable to tell him because I did not pay attention to that part. It is that expiry date is mentioned here, ठीक है, यहीं पे local anesthetic cartridge पे ही mention हुई होती है. अच्छा, इसमें क्या, what is being shown in this picture? Scooping method. सर ठीक है, scoop technique, single handed scoop technique. Okay, what is this instrument? ट्रिपल फ्रेंच. Okay, triple syringe या air water syringe भी कह सकते हैं. As you already know about it, it is used for aerosol production, for the cleaning of the cavity, and for the drying the teeth. अच्छा, इसमें ना the purpose of showing this picture is to give you an idea कि whenever you want to examine a patient, you need an examination kit, and that examination kit comes in a pouch, ठीक है, which is being autoclaved. तो ये examination kit देखने में इस तरह की होती है, ठीक है. Sometime since अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कि triple syringe is also, the tip of the triple syringe is also here. Why? Because whenever you want to examine the caries, you have to dry the tooth first and then you can examine caries, so that's why. And in examination kit हमने पेरियो प्रोब भी होता है, एक्सप्लोरर भी होता है, कॉलेज ट्वीजर भी होते हैं, मिरर भी होता है. बट समटाइम्स अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, तो आपने सबसे पहले वो तीन बोलने हैं: मिरर, कॉटन प्लायर्स, ट्वीजर्स एंड एक्सप्लोरर. अच्छा, this is the basic tray setup. Like a patient came or visited your dental clinic, and you want to examine that patient. So what you will do, you will perform the tray setup, and this is the sequence. ठीक है. अब मुझे I have no idea कि आप लोगों को ये सुन भी रहे हैं, यहाँ पे सब सो रहे हैं, तो सर हम आपको सुन रहे हैं, हमें मजा आ रहा है. या फिर मैं वन बाय वन क्वेश्चंस करूं. अच्छा, ये क्या होता है? ये क्या है? नंबर 8 पे क्या दिया हुआ है? सर ये वो Cotton गॉज gauze. है. ठीक है, कॉटन. कॉटन गॉस.
ठीक है। सर्जिकल गॉज। ठीक है, जो स्टूडेंट्स अभी लेक्चर में नहीं है उनको काइंडली कहते हैं वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये मैंने ना एज सिंपल एज पॉसिबल रखा हुआ है इस प्रेजेंटेशन को। मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इन द एग्जाम प्रॉब्लम यही आता है कि बेसिक्स नहीं पता होती। तो ये आप सीक्वेंस देख लें। नंबर 1 इज दी मिरर, नंबर 2 एक्सप्लोरर, पेरियोप्रोब, पॉलिश ट्वीजर्स, दिस इज द टिप, ट्रिपल सिरिंज की टिप है ये। This is the oral evacuator tip, but it is metallic and autoclavable. This one is the plastic या रबर की है ये, ठीक है। ये it is disposable और ये गॉज। अच्छा, इसमें भी इन्होंने एक पेपर शो किया हुआ है, सॉर्ट ऑफ अ प्रिंटेड पेपर है ये। मोस्ट लाइकली इट हैज बीन autoclaved. Whenever you want to place your instruments, it should be placed on autoclaved पेपर, या ऑटोक्लेव पेपर हो जाए या ऑटोक्लेव एल्यूमिनियम फॉइल हो जाए, समथिंग विच हैज बीन ऑटोक्लेव्ड। ठीक है, कभी भी हमने ऐसी जगह पे अपने इंस्ट्रूमेंट्स को नहीं प्लेस करना जो कि हमारी जगह स्टेरिलाइज नहीं हुई, बिकॉज देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन द फर्स्ट प्लेस? Because if we are placing our instruments on the contaminated surfaces, then there is no use in autoclaving the instrument. वो तो फिर हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट उठा के examination करते हैं। Now see Yes, this sir. picture, and what are these transparent areas? ये अब आप कोई ना बताए, मैं खुद पूछूंगा। खिजर, अगर आप हैं लेक्चर में तो आप मुझे बताएं व्हाट इज दिस, क्या है ये? Is Khizar in the lecture? नहीं सर। सना अकबर, आप बताएं जरा। सर ये डिस्ट्रैक्टर भी। जी जी बताएं, क्या है ये क्या है? प्लास्टिक। सर ये सॉफ्ट टिश्यू को रिट्रैक्ट करने के लिए तो वेरी नाइस, तो क्या कहेंगे इसे? तो रिट्रैक्टर्स। ठीक, रिट्रैक्ट, ठीक। टू रिट्रैक्ट लिप्स एंड चीक, ठीक है, सिंपल एज दैट। नाउ कमिंग टू, अब हमने अपने एग्जामिनेशन इंस्ट्रूमेंट्स और हमने कर लिए। नाउ वी आर कमिंग टू द हैंड कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो कि हम यूजुअली यूज करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट? ये आप इसमें देखें। एक्सकवेटर इज ठीक है, सॉफ्ट एक्सकेवेटर, सॉफ्ट केरीज रिमूव करने के लिए, ठीक है। अच्छा, sometimes you might have seen those who have been to the operative clinic, टेम्परेरी सीमेंट हम प्लेस करते हैं कैविट, उसको भी रिमूव करने के लिए हम यूज कर सकते हैं स्पून एक्सकेवेटर। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? बता सकते हैं? बिल्कुल एक फ्लैट हैमर है। हैचेट। वेरी नाइस। अच्छा, क्या क्या फंक्शन क्या होता है हैचेट? सर वो जो कंटूरिंग वगैरह से शायद आई गेस ओवर कंटूरिंग हो तो उसको रिमूव कर टू रिमूव डिके एंड रिफाइन कैविटी। इनेमल से हमें क्या मतलब मिला? इनेमल से हमें ये पता लगा कि वी हैव टू रिमूव द इनेमल। हमने सिर्फ इनेमल लिखो जो अगर रिमूव करना है तो उसके लिए फिर हम ये यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट? ये मिक्सिंग स्पेचुला। नहीं, ये मिक्सिंग सीमेंट ये भी स्पैचुला नहीं हैचेट है। है। ये नहीं, ये हैचेट नहीं है, ये चिजल। चिसल। तो हमें फर्क में ठीक देखो, है। ठीक है। ये चिजल होता है, और इसका फंक्शन क्या होता है? इसका भी फंक्शन टू रिमूव डिके एंड रिफाइन कैविटी प्रिपरेशन होती है। आप दोनों में फ़र्क देख लें। आई विल प्रोवाइड द प्रेजेंटेशन एज वेल, लेकिन ये फ़र्क देखना ज़रूरी है। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? मार्जिन सर ये ट्रिम करने के लिए जो
gingival margin femur. ये जो एक स्टूडेंट सारे आंसर्स दे रहे हैं कौन है? क्या सारे आंसर इसी ने देने हैं? 7 आप देंगे? हुज़ैफा सर. हुज़ैफा अभी आप जरा रुको। एमन फयाज आप बताएं व्हाट इज दिस? सर ये तो मैं देखी पहली दफा रही हूँ। ठीक है, मैं बेसिकली प्रेजेंटेशन देने का मकसद ये है कि इफ़ यू हैव अ स्लाइटेस्ट हिंट अबाउट एनी इंस्ट्रूमेंट एंड यू शुड नो, ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ अ मेंटल एक्सरसाइज। मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको हर चीज़ खुद ही बताऊं, अगर आपको नहीं पता तो ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है जिंजाइवल मार्जिन ट्रिमर, ठीक है। अब जिंजाइवल मार्जिन ट्रिमर एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, जो क्लास 2 कैविटी होती है उसका जिंजाइवल मार्जिन होता है। प्रॉक्सिमल बॉक्स बना हुआ है ना, ये इसका जिंजाइवल मार्जिन है। इस एरिया को स्मूथ करने के लिए, टू स्मूथ दिस एरिया वी यूज अ जिंजाइवल मार्जिन ट्रिमर, ठीक है। नाउ द पर्पस ऑफ जिंजाइवल मार्जिन ट्रिमर इज टू स्मूथ द जिंजाइवल मार्जिन in those cases where we cannot use the high speed handpiece, because the high speed handpiece requires high level of control, और अगर हमारा कंट्रोल्स आउट हो जाए तो फिर देयर इज अ चांस दैट वी माइट ओवरकट दिस एरिया, ठीक है। सो वी नीड अ इंस्ट्रूमेंट, अ हैंड इंस्ट्रूमेंट, जो कि हम इजीली मूव करें और इस एरिया को स्मूथ करें। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द जिंजाइवल मार्जिन ट्रिमर। अच्छा, ये क्या है? ये दो जो ऊपर वाले, व्हाट इज दिस? सर amalgam gun. ठीक है, एमलगम गन है, एमलगम कैरियर भी कहते हैं। इट इज यूज्ड टू कैरी एमलगम इनटू द कैविटी एंड दिस इज नोन एज एमलगम वेल। मतलब द फ्रेशली मिक्स्ड एमलगम जो है ना वो हम इसमें डालते हैं और फिर यहाँ से कैरी करके विद द हेल्प ऑफ एमलगम कैरियर और फिर हम अपनी कैविटी में प्लेस करते हैं। व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट? कंडेंसर। कंडेंसर। ठीक है, अच्छा enamel condenser. ठीक हो गया। अब आप देखें ये एक नैरो है और ये है ब्रॉड। फर्क क्या है? कब हम नैरो यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, और कब हम ब्रॉड यूज करते हैं? The anterior सर narrow use सर में ब्रॉड जब जो है वो डीप कैविटी में करते हैं और जो नैरो है वो जब ऊपर लेवल आ जाए तब करते हैं। जब उसकी anatomical shape बना रहे हो थोड़ी सी. अच्छा, whenever you have let's suppose you have prepared a cavity on a tooth, ठीक है। अब आपने कैविटी बना के आपने एमलगम को प्लेस किया है कैविटी में, ठीक है। अब आपने जो इनिशियली कंडेंसेशन करनी है, यू हैव टू यूज दिस नैरो एंडेड। व्हाई? बिकॉज आप लोगों ने फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। जितना एरिया कम हो जाएगा, यानी जितना इसका एरिया कम हो जाएगा, जितना नैरो ये हो जाएगा, उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा। एरिया एंड प्रेशर आर इनवर्सली रिलेटेड, ठीक है। तो इनिशियली जब आपने कैविटी फिल करनी है, इनिशियली इंक्रीमेंट्स जब आपने कंडेंस करने हैं, तो यू नीड हायर फोर्स या हायर प्रेशर, ठीक है। तो उसके लिए हमने जो है नैरो एंडेड कंडेंसर यूज़ करना है, ताकि हम तमाम वी कैन कंडेंस the amalgam restoration to all the confines of the cavity. उसके बाद after 2 to 3 increments we shift to the broader end या broader condenser में, क्योंकि उसमें फिर हम इतनी ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती। इनिशियली हमने ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना होगा। अच्छा, ये बताएं मुझे ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? सबसे पहले वाला ये क्या है? सर क्लाइड डिस्पाइट कार्वर. नहीं, क्लेवर्ड डिस्पर्ट नहीं। मेरोज आप बताएं व्हाट इज दिस? सर बॉल एंडेड कार्वर Ball तो सर ended है carver कार्वर है। ही, बॉल एंडेड है ये। बर्निशर है, ठीक है। बॉल एंडेड बर्निशर है। नंबर 2 पे क्या है? ये भी काइट Kite शेप shape कार्वर। Diamond ended Kite burnisher. अच्छा, ये जो है ना, इट इज अ टाइप ऑफ कार्वर, ठीक है। लेकिन फर्क ये है कि इट इज पॉइंटेड, ठीक है। तो इट इज नोन एज पॉइंटेड बॉल। इस बॉल को अगर हम पॉइंटेड कर दें तो ये कार्वर बन जाता है, ठीक है। पॉइंटेड बॉल बर्निशर। ये क्या है? बर्निशर। फुटबॉल शेप. कौन सा? कौन सा? फुटबॉल शेप. तो फुटबॉल शेप, ठीक है। फुटबॉल अच्छा, शेप बर्निशर। ओके, वेरी नाइस। एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि अमेरिकन्स जो है ना, दे कॉल फुटबॉल एज सॉकर, ठीक है।
और इसलिए जो है ना हमने यहाँ पे सॉकर यूज़ नहीं किया, फुटबॉल का लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया, देखें है तो ये रग्बी शेप्ड, लेकिन अमेरिकन जो है वो रग्बी को अक्सर फुटबॉल भी कहते हैं, इसलिए ये फुटबॉल शेप्ड, ठीक है। समटाइम्स पीपल यूज द वर्ड रग्बी शेप्ड, ठीक है, बट यूज दिस वर्ड फुटबॉल शेप्ड। ये क्या है नीचे दिया हुआ है, सबसे पता तो चल गया। चलें, सर टी वॉल फर्नीचर। ये टी बॉल फर्नीचर T-ball। है। इसमें होता ये है कि ये सबको पता तो होता है कि इट इज़ अ फर्नीचर, लेकिन ये पता नहीं होता इसका नाम क्या है, तो ये आप लोगों को नाम पता होने चाहिए। इट इज़ नोन एज टी बॉल फर्नीचर। Function, you know, smooth and shape the restoration, and it is also used to burnish the matrix bands. ये क्या है, इसका नाम क्या है इसमें? ये जो फर्स्ट Accessory car variculated, right? ठीक है, वेरी नाइस। और ये नंबर 2 पे फिर नंबर 2 पे सर ये भी यही कारवार ही है। सर ये कार्वर है हॉलैंड बैग। नॉर्मल बैक कार्बर है। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक जो द कॉमन मिस्टेक विच स्टूडेंट्स यूजुअली मेक, वो ना इस हॉलैंड बैक कार्बर को कहते हैं कि इट इज़ प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। बट बेयर इन माइंड, प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना, इट हैज़ अ स्मूथ एंड राउंडेड एंड, लेकिन हॉलैंड बैक कार्बर का पॉइंटेड एंड होता है, ठीक है। ये चीज़ अभी तक मेरे असिस्टेंट को भी समझ नहीं आ सकी, क्योंकि मैं रोज़ बताता हूँ। तो आई एक्सपेक्ट कि आप इस चीज़ को याद कर लें कि द एंड इज पॉइंटेड, ठीक है। टू रिमूव एक्सेस एंड कार्व द एनाटमी, एमलगम कार्बर की फंक्शन ये होता है। अच्छा, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? प्लास्टिक। जी, प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसका राउंडेड एंड है, और प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट का फंक्शन ये होता है टू सर कैरी। ये प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट विद वन एंड कंडेंसर नहीं होता इसको कहते हैं? ये प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना, इट कम्स इन डिफरेंट शेप्स, ठीक है। नाउ दिस प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट जो है, इसका एक एंड जो है इस तरह का है, और एक कंडेंसर जो होता है ना, वो इस तरह का इसलिए नहीं होता क्योंकि हम इसको भी यूज़ कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्पोजिट, ठीक है। और आप लोगों ने हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, वी नेवर कंडेंस द कॉम्पोजिट, वी पैक इट और वी प्लेस इट। कभी भी हमने कॉम्पोजिट को, रेस्टोरेशन को कंडेंस नहीं करना होता है, हमने उसको पैक करना होता है इनटू द कैविटी। इसलिए हम कंडेंसर का लफ्ज़ यूज़ नहीं करते इसमें, प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, क्योंकि जब भी आप whenever you will try to condense the composite restoration into the cavity, तो उससे होगा ये, the composite restoration most likely would stick to your इंस्ट्रूमेंट। तो composite restoration होगी वो आपके इंस्ट्रूमेंट के साथ स्टिक कर देगी, इसलिए हमने ज़्यादा एक्सेस फोर्सेस नहीं अप्लाई करनी होती एज कम्पेयर टू एमएलएम। So this is basically the part of plastic instrument. अच्छा, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ये इंस्ट्रूमेंट है जो छोटा सा बॉल एंडेड है, और ये नीचे एक पैड में, एक पेपर पैड मिक्स किया जा रही है चीज़, क्या है ये? सर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लेस करने के लिए यूज ठीक है, करते ठीक हैं। है, सर वेरी वो नाइस। एप्लीकेट हाँ, नाम क्या होता है इसका? डाइकल डाइकल एप्लीकेटर। ठीक है, डाइकल एप्लीकेटर होता है नाम, वेरी नाइस। टू मिक्स एंड प्लेस लाइनर मटेरियल, जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, जीआईसी भी हो सकता है। ये क्या है, ये पता होगा आपको? टॉफल मायर टॉफल मायर वो रिटेनर। ठीक है, और ये क्या है नीचे जो दिए हुए? सर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बैंड। मैट्रिक्स बैंड। अब फंक्शंस पता है या बताऊं मैं? कौन बताएगा इसके फंक्शन मुझे? सर प्रॉक्सिमल वॉल बिल्डअप के लिए यूज करते हैं हम, खासतौर पे एमलगम्स, ये एग्जाम और क्राउन बिल्डअप्स के लिए भी यूज करते हैं। क्राउन बिल्डअप्स, व्हाट डू यू मीन बाय क्राउन बिल्डअप्स? सर जब हमने एमलगम से क्राउन बिल्डअप करना होता है, या कस क्राउन बिल्डअप करना होता है, साइज में छोटा होता है और हमने बाद में उसके ऊपर आर्टिफिशियल क्राउन प्लेस करना होता है, तो उसके लिए
The basic function of this is to restore class 2 cavities, ठीक है? It acts as an artificial wall. अब आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि you guys know the function of each and every instrument, but what you do, you mix up the things, ठीक है? Use the proper word, ठीक है? कोई पूछे आपसे what is the function of this, आपने कहना है it is used to restore class 2 cavities, ठीक है? That's it. ये क्या है? ये तो पता है सबको. wedges, फंक्शंस बताते जाए मुझे, 4-5 फंक्शंस हैं. चलें शाबाश, जल्दी से बताएं. आइसोलेशन वगैरह करने के लिए, जिंजर टिश्यू को प्रोटेक्ट टिश्यू को करने के लिए. ठीक है, और सर उसका प्रॉपर कॉन्टूर बनाने के लिए मैट्रिक्स को. ठीक ठीक हो गया. अब आप जहन में रखें कि फंक्शंस ना याद रख लें. टू डिप्रेस द इंटरडेंटल पैपिला टू कंट्रोल ब्लीडिंग, ठीक है, क्योंकि बेसिकली वो हेमरेज कंट्रोल के लिए यूज़ हो रहा है. टूथ सेपरेशन प्रोवाइड कर रहा है, एंड टू सिक्योर मैट्रिक्स बैंड एंड रबर डैम इन प्लेस. ठीक है, ये फंक्शन है जो आपको पता होने चाहिए. ये क्या है कि जो 2 पेपर्स शो किए हैं, ये क्या है? आर्टिकुलेटिंग पेपर, और ये क्या है ऊपर जो दिया हुआ है इंस्ट्रूमेंट पेपर होल्डर है. ठीक है, इसका नाम होता है मिलर फोर्सेप्स. आर्टिकुलेटिंग पेपर फोर्सेप्स भी कहते हैं और मिलर फोर्सेप्स भी कहते हैं. इट इज़ यूज्ड टू होल्ड द आर्टिकुलेटिंग पेपर. पता है आप लोगों को, टू रिकॉर्ड द ओक्लूजल सर्फेसेस. ये क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? amalgamator. एमएलगेमेटर. इट इज़ यूज्ड टू मिक्स एमएलगम. एमएलगम जो कैप्सूल फॉर्म में आता है वो हम यहाँ फिक्स कर देते हैं, एंड टर्न ऑन द प्रोग्राम, उसमें एमएलगेमेशन होती है और मिक्स होती है. रेशो क्या होता है मरकरी और एमएलगम पाउडर का, उसका एलवाई पाउडर का? 1:1. व्हाट इज दिस? सर वो LED light. LED light. क्योरिंग लाइट है. क्योरिंग लाइट. Curing लाइट, light. क्योरिंग लाइट, ठीक है, वेरी नाइस. व्हाट इज क्योरिंग दिस? लाइट. सर ये वो Amalgam gun. अच्छा, ये Amalgam amalgam gun. नहीं है. Just like amalgam gun, this is used for composites, because composites also comes in a form of capsules. तो कैप्सूल यहाँ फिक्स कर दिए जाते हैं, we press it और उसके Yes, बाद sir. डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं composite को. This is known as dispensing, composite dispensing gun. This is not the amalgam gun. What is this? हैंड पीस, High speed or slow speed? हाई स्पीड. High speed hand piece. हाई स्पीड हैंड पीस. ठीक है. Difference being in the revolutions per minute or RPM, more than 200,000 RPM होता है. 200. ठीक है. और स्लो में हमारा RPM होता है below 12,000 RPM. This is the rubber dam kit, आप लोगों को पता है. ये this is the important part. This is the bow. ठीक है. This is the perforation hole. This is the wings, and ये जो है ये वाला एरिया इसका जॉ है और ये बीक. ठीक है. अभी तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछ सकते हैं, बस प्रेजेंटेशन में खत्म होने वाली है. कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. नहीं सर. रबर डैम शीट 6 by 6 इंचेस में आती है ये, और इन केस ऑफ चाइल्ड पेशेंट्स 4 by 4 इंचेस में भी आती है. विद लेटेक्स, विदाउट लेटेक्स फ्री भी आती है और सिलिकॉन में भी आती है. लेटेक्स फ्री हम उन पेशेंट्स में यूज़ करते हैं जिनमें लेटेक्स एलर्जी हो. ये हमारा टेम्पलेट होता है जो कि हम प्लेस करते हैं रबर डैम के ऊपर और उससे स्पॉट्स लगाते हैं. ठीक है, ये हमारा रबर डैम पंच है और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है. It has different holes. The first is used for lower incisors. Second, upper incisors, premolars and canines. Molars. The last two are used for molars. अच्छा, sometimes the clamps are plastic clamps are used. क्योंकि प्लास्टिक क्लैम्प्स जो होते हैं वो रेडियोग्राफी में विजिबल नहीं होते हैं, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. जो मेटालिक फ्रेम्स होते हैं या मेटालिक क्लैम्प्स होते हैं वो विजिबल होते हैं. ठीक है. अभी तक यही है प्रेजेंटेशन आपकी, और कल इंशाल्लाह बर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. हम स्लोली चलेंगे. इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क. ठीक है, और पूछ सकते हैं आप लोग. नो सर. No, sir. Thank you.
ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने जाने से पहले अपनी अटेंडेंस मार्क करके जाना है, ठीक है। अपनी चैट बॉक्स में अटेंडेंस मार्क करें और इंशाल्लाह we'll meet tomorrow in the next lecture. इंशाल्लाह सर। जो वर्ड रैशनल इसको चेक नहीं किया। तो बंद करिए।